Jasmeet Singh Sandhu has achieved third rank in Civil Services Exam 2015 in his fourth attempt. He is an engineer from IIT Roorkee and is presently working as an IRS probational officer. Jasmeet's father JS Sandhu is an officer in the Agriculture Ministry and his mother Surinder Sandhu is a homemaker. He gave credit for his success to his family, friends and teachers. He underlined some indispensable points for the IAS exam preparation in talks with JharkhandJosh.com. How do you feel after getting success in the IAS exam 2015? सर आई फील वेरी satisfied, relieved और खुशी इस बात की है कि जो काम शुरू किया था वो एक लॉजिकल एंड तक पहुंचा है. Whom would you like to thank for your success in the IAS exam and why? बहुत सारे लोग हैं. If I were to recall, my family has been always there, friends have been always there, and teacher especially Mukul Pathak sir has been always there. I'd like to thank them all. Please tell us about your family and educational background. My family has, apart from me, three members, and my father, who is currently working as a DDG ICR in Ministry of Agriculture, and my mother is a housewife, and she has been always a continuous support and motivation for me. My younger brother is a engineering graduate, passed out from IIT Delhi in the last year, and he has been always working along with me and motivating me as well. And myself, I have graduated from IIT Roorkee in 2010. Then I gave attempts in 11 and 12. I dropped an year in 13, but I again qualified in 14 and 15 attempts. Thank you. When did you choose to become a civil servant and why? It was basically after graduation that I thought कि कौन से avenues हैं working के लिए, employment के लिए, and to me then public services appealed a lot because I felt social recognition भी and opportunity to make a change भी as well. Please tell us about your previous selection in civil services. I have had 4 attempts. 2011 and 12 में 2 attempts I gave. I qualified for the interview but I couldn't make it to the final list. Then I appeared for Punjab State Civil Services exam in 2013 where I secured the 6th rank. वहाँ से एक necessary confidence आया. Then I gave the 2014 and 2015 UPSC exam और जिसमें 332 rank और 3rd rank आया finally. What motivated you to reappear in the civil services exam? It was basically the fact that it always felt that the job was incomplete and I felt I had it in me to reach to the top and वो एक जो necessary confidence था पंजाब स्टेट सिविल सर्विसेज से आ गया था and I felt that I need to give 1 or 2 more attempts. Please tell us about your hobbies and interests. I basically like playing football. I have been a football player also at the district level and we have myself and my brother also watch football a lot in spare times. Plus I like blogging a lot. And I have written most of my preparation strategies and essays and everything on a social platform known as Quora. So that is also one of my favorite pastimes. What will be your priorities after becoming an IAS officer? Mostly I would look at seeing a particular district and what are the major challenges, and I think by and large the challenges would revolve around making the public schemes work and ensuring that whatsoever are the targets of the government, they are meted in that area. How much time should one give for the preparation of IAS exam? When did you start the preparations for IAS exam? मैंने खुद ने तो 2011 में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी. देन आई गेव द अटेम्प्ट्स इन 2011 एंड 12 और दोनों में इंटरव्यू दिया था बट फुली क्वालिफाई नहीं हुआ था. बट नए एस्पिरेंट्स के लिए मेरा यही कहना है कि आप 1-1.5 साल की डेडिकेटेड प्रिपरेशन डाल दीजिए इस एग्ज़ाम के लिए और आपका सिलेक्शन होना काफ़ी हद तक अच्छा हो जाएगा. फिर तय है. Do you think examination is more analysis oriented now rather than fact oriented? पहले ज़रूर था एग्ज़ाम मोर फैक्चुअल ओरिएंटेड. अब भी प्री थोड़ा बहुत फैक्चुअल ओरिएंटेड रहता है बट डिस्टिंक्टिवली मेंस तो एनालिसिस ओरिएंटेड चला गया है. एंड आई वुड ऑलवेज से कि आप फैक्ट की तरफ देखो बट ऑलवेज लुक एट इट द लार्जर पिक्चर. थोड़ा लार्जर पिक्चर कॉन्टेक्स्ट को भी देखो साथ के साथ ताकि आपका एनालिसिस अच्छा रहे. Is joining coaching institute indispensable for clearing the exam? मेरा खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ एक आध मिनट में शेयर कर देता हूँ. व्हाट आई वुड से, मैंने 2011 में एक बहुत ही रिपीटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया था एंड पूरा साल कोचिंग के बाद आई फेल्ट अ बिट चीटेड बट आई हैव ऑलवेज सेड कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपको बस एक हल्की सी डायरेक्शन दे सकते हैं. तैयारी आपको खुद करनी होगी, मेहनत खुद करनी होगी. तो कोई इंडिस्पेंसिबल नहीं है. इनफैक्ट आजकल तो बच्चे वो वाले ज़्यादा निकल रहे हैं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में नहीं जा रहे हैं. तो मेरी भी सजेशन यही होगी आपको कि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ना ज्वाइन करें. Did you use internet? How helpful was it?
आई डिड यूज़ लॉट ऑफ इंटरनेट, और इंटरनेट का यूटिलाइजेशन मैंने ऐसे किया था कि आई यूज़ टू प्रिपेयर लॉट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, पॉलिसीज़, एक्ट्स वगैरह, इनके लिए यूज़ करता था। थोड़ा फैक्चुअल बेसिस को भी कवर अप करने के लिए इंटरनेट यूज़ किया था। एंड ऑल्सो कभी कभी जब एक पर्टिकुलर आर्टिकल में एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं होता है, देन आई यूज़ टू लुक इट अप एट द इंटरनेट, ताकि उसकी फुल एक्सप्लेनेशन हो सके। Which resource is the most relevant to update day-to-day knowledge as well as backgrounds of events and how? अगर आप जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स की बात करेंगे आईएएस एग्ज़ाम के लिए, मैं फ़ील करता हूँ कि इनसाइट्स ऑन इंडिया की वेबसाइट बहुत अच्छी है और उसमें आपको काफ़ी मटेरियल मिलेगा। उसके अलावा आप आईएएस बाबा की वेबसाइट भी देख सकते हैं, एंड पुराना मुरनाल भी एक बहुत अच्छी वेबसाइट रही है जिसमें बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन मटेरियल रहा है। साथ के साथ साथ और भी वेबसाइट्स हैं जो आपको सप्लीमेंट कर सकते हैं तैयारी, और आप समय पढ़ने पे उनकी भी सहायता ज़रूर लें। What type of mindset should the candidates keep to handle evolving pattern of IAS exam? माइंडसेट अपना ये बनाइए कि एग्ज़ाम में जो आपने पढ़ा हुआ है किसी टेक्स्ट बुक में, किताब में, उसमें से कुछ सवाल नहीं आने वाला है। बी प्रिपेयर्ड फॉर अ न्यू चैलेंज, दे विल गिव यू न्यू क्वेश्चंस। तैयार रहिए कि पढ़े में से बहुत कम आएगा, तो अपनी अंडरस्टैंडिंग सही कीजिए ताकि सवाल नया भी हो तो आप अपने पुराने बेसिक मटेरियल से उसे हैंडल कर पाएँ। Do you think a good understanding of current affairs plays an important role in the IAS exam? करंट अफेयर्स अब तो खैर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन हो चुका है, तो इस वक्त बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है बच्चों को कि अपने करंट अफेयर्स को रेगुलरली अपडेट करें। तो मैगज़ीन्स, वेबसाइट्स वगैरह को रेगुलरली फॉलो करें। इस और मैं बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि आप इनसाइट्स ऑन इंडिया का एडिशन बहुत अच्छे से ध्यान से फॉलो कर सकते हैं। बहुत अच्छे पुल आउट्स आते हैं उनके। आप खुद उनसे पढ़ने की ये कोशिश करिए कि हमें क्या क्या सेक्शंस कवर करने हैं, और बेसिक नोट्स बनाइए। किसी वेबसाइट पे हमें फुली डिपेंडेंट नहीं हो जाना है, हमें बेसिकली उनसे मटेरियल लेना है जो हम नहीं कवर कर पाए थे। तो डिफरेंट सेक्शंस से जाइए, डिफरेंट सेक्शंस के थ्रू लर्न करिए जैसे आप वेबसाइट के थ्रू गो थ्रू होते हैं। What do you think about Jagran Josh's current affairs section? Do you think it fulfills the requirements of candidates to prepare for competitive exams? अगेन कोई भी वेबसाइट जैसे कि जागरण जोश, ये सब ये आपकी बेसिक प्रिपरेशन को सप्लीमेंट करने के लिए हैं। आप इस तरफ साथ के साथ जब तैयारी कर रहे हैं, जैसे एक दिन का न्यूज़पेपर आपने पढ़ा, तो मेरा यही आपसे अनुरोध होगा कि रात में कुछ टाइम निकाल के 15-20 मिनट निकाल के वेबसाइट को ज़रूर देख लें, जहाँ पे उसकी करंट अफेयर्स की ब्रीफिंग मिलेगी आपको। उसको एक बार पढ़ लें कि आपने वो इशू कवर कर लिया है या नहीं कवर कर लिया है। अगर आप देखते हैं कि जागरण जोश या कोई और वेबसाइट में आपका वो एरिया कवर नहीं है, तो उसको ड्यूली नोट करें और अपने नोट्स वहाँ से बना लें उस चीज़ के लिए। What more can be done to improve the IAS section of jagranjosh.com? जागरण जोश के सेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए मैं यही कहूँगा कि मोर क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं बच्चों को दिए जा सकते हैं, जो कि एक मॉडल आंसर्स की तरह फ्रेमवर्क है। उससे क्या होगा कि बच्चों को पता चलेगा कि जो आईएएस में मेंस में सवाल आए हैं उनके कैसे अच्छे से आंसर लिखे जा सकते हैं। तो एक आंसर राइटिंग की और सेक्शन है जो मेरे हिसाब से इम्प्रूव किया जा सकता है। दूसरी बात ये है कि करंट अफेयर्स के सेक्शन में एक्सपेंशन की ये ज़रूरत है कि उसमें और भी रेगुलर अपडेशन अगर हो सके, तो मैं अनुरोध करूँगा जागरण जोश के प्लेटफॉर्म को। ऑलरेडी वो कोशिश करते हैं और बहुत सारे डिफरेंट सेक्शंस को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं यही बच्चों को अनुरोध करूँगा कि आप चाहे जितना मर्ज़ी कम टाइम मिले, 5-10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना भी टाइम मिले, ज़रूर एक बार इन वेबसाइट्स के थ्रू एक बार गो थ्रू हो जाएं दिन में। चेक कर लें कि आपकी कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है। Please enumerate the do's and don'ts for preparation of IAS exam. डूज़ में तो मैं यही कहूँगा कि ऑलवेज़ एक फ़िक्स शेड्यूल रखें, रेजिमेंट रखें, और अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। साथ के साथ साथ ऑल्सो एक फ़िक्स टारगेट हर रोज़ अपने आप को डेली असाइन करें और उसको पूरा करने की कोशिश करें। डोंट्स में मैं यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। डोंट्स में मैं ये भी कहूँगा कि अपनी कंपनी एक आध गुड फ्रेंड्स तक ही सीमित रखें, किसी गलत कंपनी का भी शिकार न बने इस प्रोसेस के दौरान। और डोंट्स में मैं ये भी कहूँगा कि अपने आप को निरंतर इवैल्यूएट करते रहें, हमेशा आइसोलेट ना हो जाएं, और मतलब ऐसा ना हो कि आपको पता ना चले टाइम कब तक निकल जाए।